તો મોદીએ મઠમાં જઈને સંતો મહંતોના ગુણગાન ગાયા. તો ભાજપે મિશન 2014ની તૈયારીઓ શરૂ કરી છે કે કેમ, આ મુદ્દે વધુ ચર્ચા કરવા આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે રાજકીય વિશ્લેષક વિષ્ણુભાઈ પંડ્યા અને દિલ્હીથી જોડાશે બીજેપીના નેતા શ્રીકાંત શર્મા. આપનું સ્વાગત છે. વિષ્ણુભાઈ, સૌથી પહેલા આપને પૂછવા માંગીશ કે જે રીતે આજે ભાષણ કર્યું એમાં ખાસ સંતોનું મહત્વ, હિન્દુ સંસ્કૃતિ, હિન્દુમાં સંતોનું મહત્વ અને હિન્દુને અત્યારે સંતોને હિન્દુ સમાજ અનુસરે છે, આવી બધી વાતો થઈ. એનું રાજકીય રીતે જોવા જઈએ તો શું પ્રતિક્રિયા હોઈ શકે? જો કોઈ પણ પ્રવચનનું મહત્વ એની સ્થિતિ, પરિસ્થિતિ અને ક્યાં કોણ બોલે છે એના ઉપર આધાર છે. ચીફ મિનિસ્ટરો તો અનેક જગ્યાએ અનેક ભાષણો થાય જ છે, પણ કેરળમાં જે નરેન્દ્ર મોદીનું ભાષણ થયું એ ચીફ મિનિસ્ટર નરેન્દ્ર મોદી કરતાં નરેન્દ્ર મોદીનું ભાષણ એનું વધારે મહત્વ છે. બીજી વાત એ છે કે આ કેરળમાં થયું છે. કેરળનો જે આપણો ઇતિહાસ છે, ભૂમિકા છે, જે રાજકીય ભૂમિકા છે, એમાં મુખ્યત્વે કમ્યુનિઝમ છે. ત્યાં ડાબેરી મોરચો રાજ્ય કરે છે. કોંગ્રેસ વર્સિસ ડાબેરી મોરચોનું એક વર્ચસ્વ હતું. ભાજપનો પુરોગામી જનસંઘ હતો. જનસંઘ અને ભાજપ એક કમ્યુનિઝમ વર્સિસ નેશનાલિઝમ, આ બે વિચારધારાઓ સાથે જોડાયેલું છે. કેરળમાં 1967માં પહેલી વાર ભારતીય જનસંઘનું અખિલ ભારતીય અધિવેશન મળેલું અને એ વખતે દીનદયાળ ઉપાધ્યાય એના અધ્યક્ષ હતા. કેરળમાં જનસંઘ એક પ્રશ્નાર્થ હતો એ વખતે પણ મોટા પાયા ઉપર અધિવેશન થયું. જોકે એનો રાજનીતિક લાભ બહુ મળ્યો નહીં, પણ કેરળમાં રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘની શાખાઓનું પ્રમાણ ઘણું મોટું છે. આ બીજી એની ભૂમિકા. આ ભૂમિકાના આધારે ત્રીજું જે નારાયણ ગુરુ સ્વામી છે એ કેરળના ઘણા મોટા ભાગના મતદારો ઉપર ધાર્મિક વર્ચસ્વ ધરાવે છે. બિલકુલ. નારાયણ ગુરુ અહીં પણ છે, એમનું અમદાવાદમાં પણ છે, પણ કેરળમાં જે રીતે છે અને એમણે નરેન્દ્ર મોદીને બોલાવ્યા, આ વસ્તુ બહુ મહત્વની વાત છે. અને એનું રાજનીતિક પરિપ્રેક્ષ્યમાં જો વિશ્લેષણ કરીએ તો એમ લાગે છે કે દક્ષિણ ભારતમાં ભારતીય જનતા પક્ષ હવે પ્રવેશ કરી શકે કે કેમ, અને કરશે તો કેવો કરશે, એ પ્રશ્ન કેવળ ભારતીય જનતા પાર્ટી માટેનો નથી, વિરોધ પક્ષો માટેનો પણ છે, બીજા પક્ષો માટેનો પણ છે. કમ્યુનિઝમને જે લાગે વળગે છે ત્યાં સુધી અત્યારે એમણે જે વિરોધ કર્યો કે મોદી કેરળમાં નહીં આવવા જોઈએ, નિમિત્ત તો 2002નું જ આપે, સ્વાભાવિક છે, પણ વિરોધ કર્યો. વિરોધ એટલા માટે થયો કે ધીમે ધીમે જો પગે પસારો ભારતીય જનતા પાર્ટીનો થાય, અને એવી શક્યતાઓ અલગ અલગ રીતે છે. ત્યાંની ક્રિશ્ચિયાનિટી જે છે, એ ઈસાઈ જે પ્રજા છે એમાંનો ઘણો મોટો બૌદ્ધિક વર્ગ ધીરે ધીરે બીજેપી તરફ વળતો થયો છે. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ તો કટ્ટર કહેવાય. એમના જે મિત્રો છે કેરળમાં, દાખલા તરીકે ન્યાયમૂર્તિ છે રામા જોએસ અને બાકી બધા, એ બધા પણ અત્યારે એમ માને છે કે કેરળમાં પરિવર્તન લાવવું હોય તો કોઈક विकल्पની જરૂર છે. હવે કયો विकल्प? बिल्कुल, तो धीरे धीरे नहीं. शर्मा जी, आज की अगर मुलाकात की बात करें केरल में नरेंद्र मोदी की, तो लगता है कि साउथ के जो भी स्टेट है उनमें बीजेपी की पकड़ मजबूत करने के लिए भी ये मुलाकात देखी जाएगी? देखिए, नरेंद्र भाई मोदी राष्ट्रीय नेता हैं जी, और पूरे देश भर में जहाँ से भी उनको कोई निमंत्रण प्राप्त होता है वो वहाँ उन कार्यक्रमों में जाते हैं. और जो हमारा पक्ष है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विचारधारा है, उसके बारे में अपना पक्ष रखते हैं. और उसका क्या लोग अपना आकलन करते हैं, मैं उस विषय पर तो नहीं जाता हूं जी, लेकिन हमारी जो अपनी विचारधारा है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारे जो उद्देश्य हैं, उन सब के बारे में हम लोगों के साथ अपना व्यू शेयर करते हैं. और उसी कार्यक्रम के तहत मोदी जी आज केरल में हैं. और भी कई अन्य राज्यों के लोग मोदी जी को निमंत्रण दे रहे हैं, मोदी जी को बुलाना चाहते हैं. और मोदी जी अपने समय के हिसाब से, अपने व्यस्त समय के हिसाब से उन सभी कार्यक्रमों में जाते हैं. शर्मा जी, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं की बात की, संतों की बात की, लगता है कि बीजेपी का जो एजेंडा है उनको वो कहीं ना कहीं रख पा रहे हैं सफल तरीके से. देखिए, हिंदुस्तान 125 करोड़ जो जनता है वो हमारा, हम उसको अपनी जनता मानते हैं जी. और उसमें संत समाज भी आता है,
और अन्य हिस्से जो हैं समाज के वो भी सब उसमें आते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक हम के संत अलग हैं, बाकी लोग अलग हैं, या हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, ऐसा अपना कोई क्राइटेरिया नहीं है जी। संपूर्ण भारत हमारा अपना भारत है और यही हमारा लक्ष्य है, दिव्य भारत, भव्य भारत, संपूर्ण भारत का विकास और भारत के सभी वर्गों का विकास हमारी प्राथमिकता है। જી વિષ્ણુભાઈ શું કહેશો, જે રીતે ભાજપનો એજન્ડા, એમ કીધું કે ભાજપનો જે એજન્ડા છે એને ક્યાંક ને ક્યાંક નરેન્દ્ર મોદી જ્યાં પણ જાય ત્યાં મૂકતા હોય છે, આજે જે રીતે એમણે પ્રવચન કર્યું એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ભાજપની કોઈ છૂપી વાત એમણે જાહેર કરી દીધી? નહીં, જે વાત કરી છે એ બિલકુલ ખુલ્લી છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીને આખા દેશમાં 2014ની ચૂંટણી નજર સમક્ષ છે, બિલકુલ, અને દરેક રાજ્યની પક્ષે હોવી બિલકુલ જોઈએ. બિલકુલ એનું પ્રતિનિધિત્વ અત્યારે સૌથી સક્ષમ રીતે નરેન્દ્ર મોદી કરી રહ્યા છે જુદી જુદા પ્રદેશોમાં. તો કેરળમાં જઈને પણ એમણે એ વાત એટલા માટે કરી કે એમણે જો સાધુ સંતોના સંમેલનમાં વાત કરી છે, આ સંતો બધા ભેગા થયા હતા. હવે સંતો પણ ભારતીય સંસ્કૃતિનો એક ભાગ છે, સાચા સંતો. બીજા પ્રકારના સંતો પણ હોય છે, પણ આમાં જે સંતો નજર સમક્ષ છે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને જનસંઘ અને RSS બધાને કે ભાઈ આ સંત સંસ્કૃતિ છે, જેમ કુંભમેળામાં બધા ભેગા થયા હતા, એના પછી ગુજરાતમાં એકત્રિત થયા હતા, હવે કેરળમાં થયા. તો આ વર્ગ એવો વર્ગ છે કે જેના અનુયાયીઓ અને ભક્તોનો બહુ મોટો વર્ગ છે, શ્રદ્ધાળુઓનો વર્ગ છે. અને એક વર્ગ એવો પણ છે કે જે હિન્દુસ્તાનની સંસ્કૃતિને 5000 વર્ષ કે 5 લાખ વર્ષ સુધીની લાંબી માને છે, એવો પણ એક વર્ગ છે. આ બધા જો એકત્રિત થાય અને એ સંજોગો ધીરે ધીરે કોંગ્રેસ પેદા કરી રહી છે. નસીબદાર એ છે ભાજપ કે આ પ્રયત્નો એવા થઈ રહ્યા છે કે બાકી બધા ભેગા થાય અને એની તક મોદીએ સ્વાભાવિક રીતે અહીં લીધી છે. ઓકે, નરેન્દ્ર મોદી હવે પછી દેહરાદૂન પણ જશે, હરિદ્વાર પણ જશે, તો શું અર્થ નીકળી શકે તેમના આ ભારત ભ્રમણનો? આ વિશે વધુ એક વાત એક બ્રેક બાદ. विराम પછી આપનું पुनः स्वागत है. नरेंद्र मोदी जाने भारत भ्रमण पर निकल गया है. शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, पहले कोलकाता गए, फिर बाद में केरल गए, अभी हरिद्वार जाने वाले हैं, क्या ये सब रास्ते वाया दिल्ली सर करेंगे? देखिए, मैंने पहले भी आपको निवेदन किया कि नरेंद्र भाई मोदी राष्ट्रीय नेता हैं जी, और संपूर्ण भारत में ही नहीं दुनिया के अलग हिस्सों में भी उनकी लोकप्रियता है और उसी से प्रभावित होकर लोग उनको निमंत्रण देते हैं और वो अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर उन निमंत्रणों को स्वीकार करते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं जी. और उसकी दो बड़ी वजह हैं कि जिस तरह से 10 साल से केंद्र में कांग्रेस की सरकार है और जिससे से धन और जन की जो लूट केंद्र की सरकार कर रही है जी. तो लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक मैसेज ये है कि 10 साल से गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, अभी उन्होंने हैट्रिक वहां बनाई है, और वहीं केंद्र में कांग्रेस की सरकार है. तो देश की जनता, देश का नौजवान, देश के बुद्धिजीवी दोनों की तुलना करते हैं कि कहां काम ईमानदारी से हो रहा है और कहां बेईमानी हो रही है. तो लोकप्रियता मोदी जी की बढ़ रही है, उसी से प्रभावित होकर लोग मोदी जी को बुलाते हैं और गुजरात की सड़कों की तुलना अन्य राज्यों से करते हैं, खासतौर से जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र है और अपना दूसरे और हिस्से हैं, जैसे दिल्ली से तुलना करते हैं, आंध्र प्रदेश से लोग तुलना करते हैं, क्योंकि 15 साल से केंद्र में जो सरकार है कांग्रेस की, ऐसे ही महाराष्ट्र में इनकी सरकार है. शर्मा जी, देखिए, नरेंद्र मोदी जहां कहीं भी गए, वो कोलकाता हो या केरला हो, मंच कोई राजनीतिक मंच नहीं थे, फिर भी उन्होंने बीजेपी का एजेंडा या तो यूपीए की नाकामी की बात ही कही. और निश्चित रूप से जो लोग अपेक्षा करते हैं सुनना, और उसी की बात वो कहेंगे. दूसरा क्या है कि मोदी जी जब कोई बात कहते हैं तो लोग गंभीरता से उसको इसलिए भी सुनते हैं क्योंकि मोदी जी ने किया है. अगर मोदी जी विकास की बात करते हैं तो लोगों के जहन में विकास की बात आती है, लोग ईमानदारी से मोदी जी को सुनते हैं. अगर वो कहते हैं कि पूरे देश भर में अच्छी सड़कें होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अच्छी सड़कें गुजरात में बनाई हैं. बिल्कुल. वो कहते हैं कि देश की कृषि विकास दर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि गुजरात की कृषि विकास दर अच्छी है. वहीं केंद्र की विकास दर, कृषि विकास दर 2% से थोड़ा बहुत ऊपर है.
वहीं डबल डिजिट में गुजरात में कृषि विकास दर है। वहीं औद्योगिक विकास दर की जब वो बात करते हैं तो गुजरात में अच्छा औद्योगिक विकास दर है, उसी हिसाब से वो केंद्र के साथ तुलना करते हैं लोग। आप कृषि के लिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि सौराष्ट्र में आज से एक दशक पहले 10,000 हेक्टेयर भूमि थी जो कृषि के योग्य थी। मोदी जी के कार्यकाल में वही भूमि 14 लाख हेक्टेयर भूमि हो गई है जो वहां कृषि हो रही है। तो मोदी जी अगर किसान के हित की बात करते हैं तो लोग गंभीरता से सुनते हैं। मोदी जी कहते हैं कि भाई अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो केंद्र की विकास दर भी बढ़ सकती है, केंद्र की औद्योगिक विकास भी बढ़ सकती है, संपूर्ण भारत को 24 घंटे बिजली मिल सकती है। लेकिन आपके अंदर विजन होना चाहिए, आपके अंदर पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए कि इन सब चीजों को आप डिलीवर कर सकें। तो केंद्र के साथ मोदी जी की विकास की तुलना हमारे देश का बुद्धिजीवी करता है, हमारे देश के नौजवान करते हैं, हमारे देश की महिलाएं करती हैं, हमारे देश के पत्रकार करते हैं। और जो लोग ईमानदारी से इस देश को विकसित रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं और 21वीं सदी भारत की सदी बने, इसकी जिन लोगों के मन में कल्पना है वो मोदी जी से बहुत प्रभावित हैं, मोदी जी के काम को लेकर प्रभावित हैं। इसीलिए मोदी जी को संपूर्ण भारत से लोग निमंत्रण दे रहे हैं और मोदी जी उन निमंत्रणों को बहुत ही सहज भाव से स्वीकार करते हैं और अपना कार्यक्रम जारी रखते हैं। ऐसे देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जहां कहीं भी जाते हैं वो अलग अलग बातें रखते हैं, वो महिला सुरक्षा की बात हो, वो आतंकवाद की बात हो, और आज उन्होंने मुद्दा उठाया ग्लोबल वार्मिंग का। लेकिन ये सारी बातें जहां कहीं भी आज भी उन्होंने बात की कि नारायण गुरु का उन्होंने उदाहरण दिया और अपनी बात रखी। कोलकाता गए थे, उन्होंने उदाहरण कहीं दिए लेकिन अपनी बात रख ली। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी का एजेंडा जो है या मिशन 2014 है उनका ही प्रचार है। निश्चित रूप से मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जी, गुजरात के सफल मुख्यमंत्री हैं, गुजरात की जनता ने तीसरी बार उनको आशीर्वाद दिया है। तो जो समाज में कहीं ना कहीं कमियां हैं उन कमियों की तरफ इशारा करेंगे और उन कमियों को कैसे पूरा किया जा सकता है उसका फॉर्मूला भी मोदी जी बताते हैं। तो समाज के जिन जिन हिस्सों में कमजोरियां हैं, जो हिस्से विकसित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस का कुशासन है और जनता देश की बहुत जागरूक है। ईमानदारी से लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर केंद्र में बैठी सरकार ईमानदारी से अगर काम करती तो कहीं ना कहीं हम आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह का भेदभाव हमारे साथ हो रहा है, जिस तरह की हिंदुस्तान की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिगड़ी हुई है। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान मतलब करप्शन, हिंदुस्तान मतलब दिल्ली देश की राजधानी है और यहां की कानून व्यवस्था की हालात आप अच्छे से समझ सकते हैं। दुनिया भर में किस तरीके से हमारे बारे में लोग सोच रहे हैं कि दिल्ली का मतलब है कि वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, वहां भ्रष्टाचार है। इसी से पता लगता है कि सरकार कितने निकम्मेपन से चल रही है। इसीलिए लोगों में आक्रोश है, लोग मोदी जी को सुनना चाहते हैं, मोदी जी को देखना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी से लोग उम्मीद रखते हैं कि जिस तरीके से 10 साल में मोदी जी ने गुजरात को विकसित किया है और गुजरात का नाम दुनिया में आज लोग बड़े गर्व से लेते हैं। और उसी वजह से अगर आज दुनिया के कोई भी देश अगर गुजरात को, हिंदुस्तान को देखते हैं तो गुजरात की खिड़की से देखते हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है, प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव की बात है। लेकिन वहीं केंद्र सरकार के निकम्मेपन की वजह से आज दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की छवि खराब हुई है। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान एक भ्रष्ट स्टेट है, हिंदुस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, क्योंकि केंद्र में बैठी कांग्रेस सरकार ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। उसने जो आश्वस्त देश की जनता को किया है उसके प्रति वो ईमानदार नहीं है, जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इसी वजह से मोदी जी के प्रति लोगों की भावना है